With small prayer, we can start our session. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityu ma amrutam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hey Lord, lead me from unreal to the real, dark to the light, and mortality to immortality. Peace, peace. इसका मीनिंग होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अनरियलिटी मतलब असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस prayer. We'll directly start with our exercise so that you can get maximum benefits. Be relaxed, be relaxed, be relaxed. We will start with the 2 minutes bell exercise. Hi friends, today I am going to introduce you wonderful technique for the mindfulness. Mindfulness means what? Awareness. And for that mindfulness, I am going to introduce you wonderful technique. And that is 2-minute bell exercise. 2-minute bell exercise. You are going to listen a sound of repeated bell. You are going to listen a sound of repeated bell to anchor your present moment awareness. To anchor your present moment awareness. Also, this is useful for you to develop your peace of mind, calmness of mind. So without wasting your time, I am going to take you to the exercise now. Find a comfortable place. Find a comfortable place where you will not get disturbed. Sit in the comfortable position, whatever it may be, the asanas, or any sitting position or standing position, or sit in the chair. Sit in the chair. Be relaxed. Close your eyes now. Be relaxed. Be relaxed. Be relaxed.
ऑल राइट। तो ये बस 2 मिनट का एक्सरसाइज था, इसको आप डेली कर सकते हो। ये प्रेजेंट मोमेंट को एंकर करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। ठीक है, शेयर नहीं हो रहा था यहाँ पे साउंड, पता नहीं क्यों डिवाइस में प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आपको लिंक शेयर किया है। इस लिंक को मैं आपको कोर्स में भी रख दूंगा, ताकि आप अ, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं आराम से, है ना। तो उसका प्रोविजन मैं कर दूंगा आपको, बस यहीं पे शेयर नहीं हो रहा था, अगर कोर्स में रहेगा तो आपको शेयर सुनाई देगा वहां पे। ऑल राइट। तो व्हाट एक्सपीरियंस यू गॉट इन दिस? मेरा, आप अनम्यूट करो प्रभुजोत, आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर मी प्रभुजोत? प्रभुजोत मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑल राइट। नहीं, आपको तो अनम्यूट कर दिया है सबको। ओके। अभी हो रहा है, नहीं हो रहा? अभी आ जाएगा, हाँ। Now it's working, sir. नाउ इट्स ऑल राइट, या Yeah, yeah. ठीक है। Sure. ऑल राइट, थोड़ा सा टेक्निकली है गया, कोई बात। बी रिलैक्स नाउ। कल का जो कि इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कैंडल मेडिटेशन भी आज सिखा दूंगा, ठीक है। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। Sit in comfortable position. Head, trunk, and neck should be straight. No movement of your body. मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल, स्ट्रेट बैठना है। Just observe your breath now. Natural breath. How it comes inside, how it goes outside. If air comes inside, how it goes inside your belly, how belly expands, your abdomen expands. What is the movement of your lungs? Just observe that.
thoughts may comes in your mind. It may be pleasant or unpleasant, doesn't matter. Your job is to just observe the natural breath. Your mind wanders here and there. Many thoughts are coming in your mind now. Bring your attention to your breath. Repeatedly, mind will wander here and there. Doesn't matter. Your job is just observing the breath. Just observing the natural breath. Mind wanders here, there, doesn't matter because it's the nature of mind. Now you understand through this attention on your breath, purposefully you are deliberately paying attention on the breath, and you realize you are mindful. आपके थॉट्स आ रहे माइंड में, इधर उधर से भाग रहे, लेकिन आप माइंडफुल हो. यू आर mindful. Thoughts are coming in your mind. Again, you are coming back to your breath. And this is the mindfulness. You are purposefully, deliberately, you are paying attention on your breath. And this is the mindfulness. Be relaxed, be relaxed, be relaxed, be relaxed. When you're comfortable, open your eyes. See, in this exercise, इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं? बस एक कंफर्ट पोजीशन में बैठते हैं और सांसों को देखना चालू कर देते हैं. ऑब्वियस है, नेचुरल है कि हमारे माइंड में थॉट आते हैं, जाते हैं. ठीक है,
लेकिन हमारा काम होता है कि ब्रेथ पे ध्यान देना है। तो क्या है, ये माइंडफुलनेस ही है। ये आपका पहला स्टेप है माइंडफुलनेस का, कि आप एटलीस्ट अवेयर हो रहे हो कि थॉट आ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि थॉट आ रहा है करके माइंड में। ठीक है, तो यू आर ऑब्जर्विंग योर थॉट्स एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस स्टार्टेड हियर। क्लियर है? ऑल राइट। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछो इसमें, अगर कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो। हाथ रेज करो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, है ना। सबको अनम्यूट करने से वो प्रॉब्लम हो गया, बात नहीं हो पा रही आपकी। इफ यू हैव ए क्वेश्चन रेज योर हैंड नाउ। नो क्वेश्चन? ऑल राइट, so we will go to the next exercise now. Okay, all right. So this exercise is shifting your thinking mind to the sensing mind. ठीक है, एक्सरसाइज किसके लिए है? शिफ्टिंग योर थिंकिंग माइंड टू द सेंसिंग माइंड। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। Now see in and around your environment. आजू बाजू में देख लो, आपके आगे भी देख सकते हो, इधर उधर। और कौन सी ऐसी चीज है आपने नोटिस नहीं की? whatever you not noticed before, that 5 things you have to notice now. You have to see the 5 things earlier you not noticed. क्योंकि बहुत बार होता है, हम वहां से गुजरते भी है, बैठते भी है, महीनों से सालों से, लेकिन हम नोटिस ही नहीं कर पाते उन चीजों को। ऐसे नई चीज को नोटिस करो जो आपने पहले नोटिस नहीं किया था। ऐसे 5 चीजों को ढूंढो आजू बाजू में। डन? ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड बी रिलैक्स। Be relaxed, close your eyes. Now feel 4 things here and now. मीन्स आपके अंदर कोई फीलिंग्स है अलग तरह का, जैसे
शर्ट या पैंट का टेक्सचर हो सकता है, एयर ब्लो कर रही है, वो आपको टच कर रही है, किसी भी चीज का चार फीलिंग्स को नोट डाउन करो। मतलब ध्यान में रखो। आप तो आंखें तो बंद है आपकी, पहले उसको बस नोटिस करो। ये रिकॉर्डेड कोर्स में आपको दे रहा हूँ पूरा, इसलिए इसको लिखो मत, अभी करो पूरा एक्टिविटीज करो इसको, है ना। कोच वालों को तो मैं मैनुअल भी बना के दे दूंगा। तो जितना इन्वॉल्व हो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। यहाँ पे चार चीजों को फील करो। जो भी आपने वस्त्र परिधान किया है उसका टेक्सचर हो सकता है, या ब्लोइंग एयर हो सकती है, या कुछ भी फीलिंग हो सकता है इनसाइड आउटसाइड से, जो भी आपको इनकाउंटर हो रहा है। ऐसे चार चीज को नोटिस करो। इफ इट इज डन देन रेज योर हैंड। चार फीलिंग को आपको नोटिस करना है। ऑल राइट, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, कीप योर आईज क्लोज ओनली। नाउ हियर or listen three things now. Close your eyes and listen the three things. Maybe the noise of the car, refrigerator sound, or distance place and a bird is singing. Whatever it may be. Notice, listen the three sounds. A noise. बैकग्राउंड में किसी का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आपके चेयर की आवाज आ रही है, मतलब डिस्टेंस पे या नजदीक पे कहीं पे भी हो सकता है, वेदर इट इज नियर बाय यू और डिस्टेंस। पिक अप थ्री थिंग्स। नाउ स्मेल द टू थिंग्स। स्मेल द टू थिंग्स। किसी का भी स्मेल हो सकता है आजू बाजू में, उसको नोटिस करो, दो चीजों का स्मेल।
Now test the one thing. Test one thing. ये आपने चाय पिया होगा तो चाय की टेस्ट आपके टंग पे हो सकती है, कैंडी खाई होगी उसकी टेस्ट हो सकती है, या आपके सलाइवा है उसका टेस्ट हो सकता है. If nothing is there, simply air is blowing or coming inside, उसका टेस्ट हो सकता है. Just notice one taste. एक स्वाद किसी भी चीज का ऊपर देखो, महसूस करो. Be relaxed, be relaxed, be relaxed, and open your eyes. See, this exercise is very powerful. You are developing your power of senses. ठीक है, सेंसेस की पावर को आप डेवलप कर रहे हो. एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, लिखो मत अभी, है ना विनीता. ये सब मिलने वाला है आपको. जितना आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उतना आपको बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे. ये पूरा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है. ठीक है, तो बहुत हेल्प करेगा ये चीज. ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया था अभी. पहले 5 बार 5 चीजों को देखने के लिए कहा था. सेकंड में 4 चीजों को फील करने के लिए कहा था. थर्ड में 3 चीज को लिसन करने के लिए कहा था. और 2 को स्मेल करने के लिए, और 1 को टेस्ट करने के लिए. इसके पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल ही रहे जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे. तो बस ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ एक्टिविटी में, उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. ठीक है, ऑल राइट. what are the 3 core skills in the mindfulness? Focus, फोकस और present moment, awareness, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, non-judgmental. नॉन जजमेंटल. वेरी गुड. तो जितने भी अपने टेक्निक्स करेंगे हम लोग इन तीनों के लिए ही कर रहे हैं. कीप इन दिस माइंड, whatever techniques I am giving to you, maybe 30-40 techniques I will give in this 21 days, ये पूरे ये तीनों के ही ऊपर है. हाउ टू फोकस, हाउ टू प्रेजेंट मोमेंट, गेट प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एंड नॉन जजमेंटल. इसी के लिए पूरे एग्जरसाइज अपने होने वाले हैं. ठीक है, अब फोकस हमें राइट जगह पे करना है. इसीलिए मैं जो आपको गोल कॉन्ग्रुएंसी सिखाता हूँ, जो कि पहले किसी ने अटेंड किए मेरे प्रोग्राम, उसमें मैंने ज़्यादा समय दिया था आपको. अल्टीमेट गोल, पर्पज इन लाइफ, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल. लेकिन मैं इस प्रोग्राम में उसको थोड़ा नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ माइंडफुल एक्सरसाइजेस ही मैं ज़्यादा करूँगा आपको. और जो मेरा स्पिरिचुअलिटी का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोग्राम होता है वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा. वहाँ पे व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, और उसको ज़्यादा एक्सप्लेन वहाँ पे करूँगा. ठीक है, क्योंकि वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम. तो पिछली बार थोड़ा सा खिचड़ी कर दिया था मैंने, है ना. तो एक साथ ही दोनों को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि नहीं, एक साथ सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. इसीलिए उन चीजों को मैंने थोड़ा सा बाद में रख दिया. अभी स्पिरिचुअल वेलबींग तो है ही है, चल ही रहा है इसके अंदर, लेकिन बहुत सारे जो डिटेल में चीजें होती है स्पिरिचुअलिटी की मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उस समय में एक्सप्लेन करूंगा. क्लियर है. तो यहाँ पे ज्यादा माइंडफुलनेस के ऊपर ही मैं फोकस दे रहा हूँ, ताकि आपको ये तीनों चीज के ऊपर काम हो जाएगा. बस इस सिचुएशन पे आपको यही ध्यान में रखना है. अभी फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे
विदाउट गोल सेटिंग आप फोकस नहीं कर पाते हो, मतलब कर भी पाओगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए आपको गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोगों के अंदर स्पिरिचुअल क्वेस्ट होती है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, वो क्वेस्ट बुझ जाती है उनकी। तो उस जब तक ये फोकस नहीं होगा तब तक वो आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लगाना है। अब मैं छोटा सा एक्सरसाइज करूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आएगा। कि जितना मैं सिंपलीफाई करूंगा उतना आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, सामने देखो आपके क्या है, दीवार है। घर में बैठे होंगे बहुत सारे, है ना, दीवार है। अभी आपका हाथ ले लो, राइट हैंड ले लो और ऐसा आगे फेस के सामने रखो। क्या दिख रहा है अभी आपको? हाथ दिख रहा है, हाथ की लकीरें दिख रही है, बराबर है। यू कैन सी योर हैंड, योर लाइंस ऑन द हैंड दिख रहा है। नाउ सी अगेन बैक साइड, जो बैकग्राउंड है आपका, जो दीवार की, उसके ऊपर देखो। इफ यू आर वॉचिंग द वॉल, कैन यू सी योर हैंड? हाथ की लकीरें दिखती है क्या उपमा? No. नहीं दिखती, है ना। हाँ, अभी आप हाथ के ऊपर देखते हो तो दीवार दिखती है क्या? No. नहीं। मतलब क्या है, जहां हम फोकस लगाते हैं वहां एनर्जी चली जाती है। दोनों तो आमने सामने ही है। ठीक है, दीवार भी सामने, हाथ भी सामने, लेकिन जहां फोकस लगाते हैं वही एनर्जी चली जाती है। और ये जहां हम अटेंशन करते हैं वही फोकस आ जाता है। अटेंशन और फोकस एक ही हो गया। क्लियर? इसलिए फोकस और अटेंशन का ज्यादा महत्व है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है पर्पसफुल अटेंशन। क्लियर है? अभी हम माइंड उधर ही भागता है जहां अटेंशन हो रहा है, और जहां अटेंशन हो रहा है इसका मतलब माइंड उधर भाग रहा है। और वो ऐसे ही नहीं भाग रहा है, एनर्जी को लेके जाता है साथ में। क्लियर है? माइंड गोज विथ एनर्जी। जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं इसका मतलब हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है, वेस्ट हो रही है। क्लियर है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अगर आप उसको मूविंग करते रहते हो तो कागज को आग नहीं लगती है। लेकिन अगर उसको स्टैग्नेंट रखते हो, एक जगह पे एक पोजीशन में रखते हो, तो सूरज की किरण को कैच कर लेता है, कागज को आग लग जाती है, फायर पकड़ लेता है वो। पावर ऑफ द फोकस। क्लियर है? माइंड में एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही है इधर उधर। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफ का फोकस। इसीलिए हम सीख रहे हैं टनेल्ड फोकस कैसे लगाना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, ये टनेल्ड फोकस के लिए कर रहे हैं। सेकंड वाले होते हैं माइंड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के लिए, और फिर ट्रैंक्विलिटी नॉन जजमेंटल के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीजों का। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये सारा खेल एनर्जी का है। आदमी जन्म से लेके मरने तक बहुत सारे लोग, 99% या उससे भी ऊपर, बहुत छोटा सा एनर्जी गैदर कर पाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा एनर्जी गैदर पर कर पाते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते ही नहीं है। क्योंकि जितना थोड़ा बहुत एनर्जी आता है उसको वेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? दे वांट टू रिलीज समवेयर, उसका ऊपर की तरफ ग्रोथ होता ही नहीं है। मतलब जो हायर लेवल पे एनर्जी जानी चाहिए थी उधर पहुंच ही नहीं पाती है, वो इधर उधर कैसे भी रिलीज कर देता है। जैसे ही आदमी थोड़ा बहुत एनर्जी ले लेता है कहीं से भी, आइदर दैट पर्सन विल डू द सेक्स, किसी से झगड़ा करेगा,
ज्यादा बातचीत करेगा, ज्यादा खाना खाएगा, मतलब किसी तरह से उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। एनर्जी उसको पता ही नहीं होती है, उसको कैसे आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उसको स्टोर करना है। More than 50-60,000 thoughts are coming in mind, and maximum energy will waste in the decoding of the thought. We are not eating with just food, we are eating with all five senses. और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम डिकोड कर रहे हैं बार बार। इसलिए मूवी सीरियल बहुत खतरनाक होते हैं, वो 6-6 महीने आपके माइंड में दौड़ते रहेंगे। बराबर है। सीरियल मूवी जो होती है 6-6 महीना साल भर आपके दिमाग में काम करते रहेंगी, मतलब वो डिकोडिंग का प्रोसेस चलता ही रहेगा। दैट्स व्हाई स्टॉप टेकिंग कोडेड इम्पल्सेस। जितना कम कर सकते हो कोडेड इम्पल्सेस को कम करना है। इसीलिए नेचर के साथ ज्यादा रहो। आप देखोगे ट्राइबल लोग होते हैं, पहाड़ी लोग होते, बहुत सीधे साधे होते, नेचर में रहते हो। जितना सिटी के लोग होते, सिटी के लोग जिस तरह होते, नेचर में रहने वाले लोग उस तरह नहीं होते, अलग होते हो, क्योंकि वो नेचर में रहते। दे आर नॉट टेकिंग द कोडेड इम्पल्सेस। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हो तो क्या करना है, नेचर में जाना है, नेचर को देखना है, टीवी नहीं देखना है। ठीक है, टीवी नहीं देखना है, वो डिस्ट्रेस के समय में नेचर के साथ रहो, कोडेड इम्पल्सेस नहीं होती है। हाँ, अगर आपको फेवरेबल कोडेड इम्पल्सेस मिलेंगे तो आपको ठीक है, लेकिन अगर जिस फ्रीक्वेंसी में है सेम फ्रीक्वेंसी का मिलेगा तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई गुस्से में है या नर्वस है और सैड सीरियल देखेगा तो और सैड बन जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं नेचर के साथ रहो उस समय में। तो कोडेड इम्पल्सेस को स्टॉप करना है। क्लियर है? हम खाली फूड से ही नहीं खा रहे, पांचों सेंसेस से खा रहे। इसीलिए बुद्ध ने आंख बंद कर दी थी। क्यों? जब आप आंख खुली होती है तो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है आदमी, लेकिन ध्यान तभी सिद्ध हो जाता है जब आप खुली आंखों से ध्यान कर सकते हो। लेकिन बिगिनिंग स्टेज पे वो बिगिनर को पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बिगिनर आदमी को खुली आंखों से ध्यान नहीं कर पाता है, इसलिए उसको आंखें बंद करके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लियर है? शिफ्टिंग थिंकिंग टू द सेंसिंग पे मैंने एक एक्सरसाइज बताई। अभी सीइंग के एक्सरसाइज बताता हूं मैं आप। ठीक है, जैसे अगर कोई आप नेचर में जाते हो, बर्ड को देखते हो, तो उसको ये नहीं करना है कि ये कौन सा बर्ड है। क्या देखना है? बस बर्ड को देखना है, उसका शेप देखो, उसका कलर देखो, जजमेंटल मत बनो। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस को भी आज करो। कहीं भी आप बाहर जाते हो, किसी भी चीज को देखते हो तो जजमेंट नहीं करना है, जस्ट उसको देखना है। मतलब शेप देखो, कलर देखो, उसको जैसा है वैसा देखना है। एक सीइंग की एक्सरसाइज है ये। उसकी आज प्रैक्टिस करना, आप कहीं भी कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस। जैसे है वैसे देखो, जजमेंटल मत बनो। क्लियर है? ये भी दूसरा भी एक्सरसाइज मैंने आपको सिखा दिया, तीसरा भी एक्सरसाइज सिखा दिया आज। तो चौथे हम करेंगे कैंडल मेडिटेशन। यहां तक अगर क्लियर होगा तो यस बोलो, ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे चल। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक क्लियर है? Sir, हेलो? coded impulses. कोडेड मतलब जो कोड किया जाता है उसको कोडेड बोलते हैं। जो ध्यान से हम देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोडिंग और डिकोडिंग होता है ना। हम्म। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और खत लिखते हो, तो ये क्या है?
स्क्रिप्ट भी एक कोडेड है ना, कोड किया है ना उसको। आप किसी से बात भी नहीं करते हो, साइन लैंग्वेज यूज करते हो, ये क्या है? कोडेड इम्पल्सेस है। तो वो समझ लेता है ना डिकोड करके, यार ये मुझे बुला रहा है, उसने डिकोड कर दिया। मतलब जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है रिसीवर को, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ आइदर वर्ड और सिंबल। तो इनकोडिंग करता है और थ्रू मीडियम के वो भेज रहा है। तो वहां पे जो रिसीवर है उसको डिकोड कर रहा है और फिर रिसीव हो रहा है। वॉचिंग टीवी। तो टीवी में तो बहुत कोडेड इम्पल्सेस है ना, पूरा कोडेड ही इम्पल्सेस है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उस टीवी को अवॉइड करना है, सीरियल को, क्योंकि सबसे ज्यादा कोडेड इम्पल्सेस वही मिलेगा आपको। उन्होंने कोड किया है पूरा। अगर वो कोई एडवर्टाइज भी आप देखते हो, तो एडवर्टाइज क्या, किसके लिए हो? आपके माइंड के साथ खेल रहे हो, वो कोडेड इम्पल्सेस है पूरे। Then any educational programs, any spiritual programs? Everything in and around is coded impulses, except the nature. जब आप इनर जर्नी पे जाते हो तो माइंड को क्रॉस करने लगते हो। स्पिरिचुअलिटी का डेवलप मतलब ही यही होता है कि माइंड को क्रॉस करना। चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख है, ये पूरे रिलीजन से। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है। जब आदमी स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है तो माइंड को क्रॉस कर देता है, और जब माइंड को क्रॉस कर देता है तो ये रिलीजन बचता नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ये जितने भी रिलीजन है हमारे माइंड में है, हमारे बिलीफ्स में होते हैं। ठीक है? इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, डेटा इज डिफरेंट, नॉलेज इज डिफरेंट, फैक्ट इज डिफरेंट, बिलीफ इज डिफरेंट एंड ट्रूथ इज डिफरेंट। ठीक है? जब आप स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब आप ट्रूथ को खोज रहे हो। रिलीजन को खोजोगे तो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? अगर हमको सत्य को खोजना है, सत्य के बारे में जानना, और सत, सत्य के बारे में जानकारी रखना और सत्य के बारे में जानना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जानते तो इधर उधर से जानकारी तो हर एक को होती है सत्य के बारे में, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो जानना जो होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको खुद के प्रैक्टिस से ही होगा, और उसके लिए माइंड को क्रॉस करना जरूरी है। So one माइंड question, sir. Every day we are going out, we are meeting people, we are seeing posters, we are seeing people. This is also we are coding or yeah, हम code जाते यस हैं. यस यस, एवरीथिंग इज कोडेड इम्पल्सेस। So that means we should not do do our work. नहीं, देखो, वर्क तो करना है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको रहना है तो आपको रहना है, लेकिन आपको चूज करना है कि कौन से कोडेड इम्पल्सेस को आपको लेना है। Hmm. अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम को सुनते हो तो उसी तरह के कोडेड इम्पल्सेस आ रहे हैं, वो आपके स्पिरिचुअलिटी को ग्रोथ करेंगे। अगर कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम आप देख रहे हो तो आप मोटिवेट होते हो। अगर कोई नेगेटिव आदमी के साथ बैठ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप नर्वस हो जाते हो। Hmm. मतलब इम्पल्सेस को आप चुन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मोटिवेटेड बनना है, ईगो को स्ट्रेंथ करना है, तो वैसे कोडेड इम्पल्सेस को चूज करो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो वैसे कोडेड इम्पल्सेस को चूज करो। मीन्स दैट इज योर चॉइस। क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पे, कैंडल मेडिटेशन को। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है? थोड़े बहुत
अगर देखो इनर लेवल पे अगर कोई डार्कनेस है तो उसको हम भी ये कर देंगे। 6:40 तक तो मैं कर ही दूंगा इसको, और 12 मिनट है। अगर किसी को बाद में कुछ काम है, क्योंकि 4-5 मिनट अगर ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, नहीं तो बीच में छोड़ोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। 4-5 मिनट आगे भी हो सकता है 6:40 के, तो आप तैयार रहो, है ना, उस चीज़ के लिए। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। जितना अच्छा इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यस प्रभुजोत, अमन, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। ऑलराइट, बी रिलैक्स। सर, कभी कभी ध्यान नहीं जाता है इस पे, कितना भी आंख बंद करो कैंडल दिखती है, कभी नहीं दिखती है, कभी नहीं, अभी बिल्कुल आगे। मेरे इंस्ट्रक्शन पे ही ध्यान दे दो, है ना, जी। डिस्कशन बाद में करेंगे। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। This is a candle meditation. This is the exercise used in India or other places also since many years. ये मतलब एक जनरल प्रैक्टिस है कैंडल मेडिटेशन का। You can use real candle or artificial candle also, imaginary candle also here. Now you can consider as an imaginary candle in front of you, just 2 feet away from you. बस 2 फीट आगे एक इमेजिनरी कैंडल को देखो। बॉडी की मूवमेंट मत करना, स्ट्रेट बैठो। भारती, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। Imagine the candle. Now see that the candle flame, how that candle flame is, the color of candle flame. Imagine the candle just 2 feet away from you. 2 फीट आगे ही देखना है उस कैंडल को। देखो उस फ्लेम को। The flame is dancing. See the color, golden, yellow, reddish, bright. The candle is dancing. Watch that wax is melting now. Wax is melting there. Focus on the candle. Pay attention on your candle flame. The flame is dancing. See the color. The smoke above the flame.
lower part of the flame color is different and upper part is color is different. Notice that, observe it. The wax is melting. You can concentrate on the flame for the 5 minutes now. The light is the love metaphor for the love and peace. Involve in the exercise only, don't write anything now. Light is a metaphor for the love and peace. Light is the metaphor for the love and peace. Now imagine that, keep your eyes closed only. Imagine that the bright light. Suppose you have a darkness in your life, any anxiety, fear, or anything you are suffering. जो आपके जीवन में कोई अंधकार लगता है आपको, कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, सैड होनेस होगा, या कुछ भी हो सकता है ऐसी चीजें, उसको इमेजिन करो अभी. That light is penetrating now. That light is penetrating to your darkness. That light is penetrating to your darkness. It will burn away. Your darkness will burn away from this light. जो भी आपके जीवन में अंधकार है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, एंजाइटी है, फियर है, तो उसको ये जो लाइट है पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है अभी. इमेजिन दैट all the sad part is destroyed by this light now.
After destroying all the misery part, you will feel very calm and peaceful now. The light is penetrating the all darkness, and your all darkness is vanishing now. You are feeling very calm and peace. Be relaxed, be relaxed, be relaxed. When you're comfortable, open your eyes. You can open your eyes now. Yes, Bharati, what is your experience? Yes, sir. Wonderful. Wonderful. Dr. Mukundraj, Wonderful experience. last time one steel plant from Visakhapatnam, one DGM was there, Deputy General Manager. What is his name? Dr. Vittal. He also attended that this my program one time, and he told this exercise he got more benefit, this candle meditation, and he practiced more. ठीक है, तो जिन्होंने भी इसका जेन्युइनली प्रैक्टिस किया होगा अभी, उनको एक्सपीरियंस मिला होगा. ठीक है, प्रभुजोत, हाउ यू फील? Very focused and very calm. उपमा, Yes, sir. you feel the difference after doing this exercise? Yes, sir. Yeah. Amanpal, Yes, sir. That's good, sir. all right, yeah. विनीता, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, बराबर है? I am not a meditation person. ये मेडिटेशन नहीं है, ये I am meditation नहीं है. trying. हाँ. इसको मेडिटेशन नहीं बोलते, इसको टेक्निक बोलते. मेडिटेशन इतना आसान नहीं होता है. हम्म, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन, और बहुत एडवांस स्टेज है, लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं ना मेडिटेशन कर रहे, वो झूठ है, वो पूरा, वो मेडिटेशन होता नहीं है, इसको टेक्निक बोलते हैं. ठीक है, जब आदमी प्रत्याहार पे जाता है ना, हम्म, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5वीं स्टेज, उसके आगे भी धारणा है, उसके बाद में मेडिटेशन है, ध्यान, और उसके बाद समाधि 8वां स्टेज, ध्यान 7वां है. ये 5वां स्टेज भी बहुत एडवांस होता है. ठीक है, ये 5वें स्टेज को ही आप माइंड को क्रॉस करने लगोगी. मतलब जो साइकिक पावर होती है ना, ये 5वें स्टेप से ही चालू होने लगेगी. ये मेडिटेशन बहुत ही एडवांस चीज होती है. तो लोग जिसको मेडिटेशन को बोलते हैं, वो मेडिटेशन होता नहीं. मेडिटेशन करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता है.
तो ये जो हम सारी चीजें सिखा रहे हैं, इसको टेक्निक कहते हैं, मेडिटेशन के लिए ले जाने के लिए। क्लियर है? मेडिटेशन के लिए तैयार करने की ये पूरी साधना है, टेक्निक है ये। मेडिटेशन इज अ मिस इंटरप्रिटेड वर्ड, रिलीजन इज a misinterpreted word, love is misinterpreted word, ये सारे मिसइंटरप्रेटेड वर्ड है, इसीलिए लोग इसका मीनिंग समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये मेडिटेशन है ही नहीं है हम जो कर रहे हैं, ये टेक्निक्स है। क्लियर है? ऑलराइट, अभी क्वेश्चन पूछो जो अभी पूछना है। Sir, can I leave? हाँ, जिसको अगर काम हो तो लीव कर सकते हो, 6:40 हो गया है, और किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, कुछ मिनट के लिए मैं Okay. आंसर दे दूंगा। Thank you, sir. यस, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। सीइंग एक्सरसाइज में सर हाँ, नॉन जजमेंटल कैसा रहना है? कुछ ना नॉन कुछ जजमेंटल के लिए मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा बाद में, अभी है ना। नॉन कुछ ना कुछ चीजें माइंड में आती है कि थॉट्स माइंड में आता है। थॉट्स को आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थॉट्स तो आते ही रहेंगे, 100% कोई स्टॉप नहीं कर सकता। इवन योगी भी होता है तो उनके भी एक आध दूसरे थॉट, उनके हायर लेवल के ऋषि के भी आएंगे ही, 2-4 तो थॉट आएंगे उनके दिन में, बहुत ही कम होंगे, तब भी थॉट तो आना ही है। ठीक है, लेकिन हमें साक्षी भाव को डेवलप करना है, उसको बोलते हैं नॉन जजमेंटल। साक्षी भाव को मतलब जैसे है वैसे देखना है। क्लियर है? नॉन जजमेंटल का मतलब होता है जैसे है वैसे देखो। जैसे मैंने अभी आपको बर्ड का एक्सरसाइज बताया था, सीइंग वाला बर्ड है ना, उसको बस देखो, कौन सा बर्ड है मत देखो, उसको बस देखो, शेप क्या है, कलर क्या है, वो नॉन जजमेंटल हो गया। नहीं तो क्या होता है, हमारे माइंड में पहले से ही इंफॉर्मेशन पड़ी होती है मेमोरी में, और हम उसी के ही आधार पे जज करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम रियलिटी को जैसे वैसे देखते नहीं है, हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन के आधार पे ही एनालिसिस करने लगते हैं। क्लियर है? अगर किसी को डॉग की पता ही नहीं है, ठीक है, और उसको वो एनिमल, कोई आदमी अगर कोई खच्चर दिखा दिया, तो उसको ना घोड़ा लगेगा, ना खेचर लगेगा, ना डोंकी लगेगा, वो बस उस एनिमल को देख पाएगा। अब ये जिनको इस बारे में पता है वही एनालिसिस कर पाएगा, क्योंकि वो प्रायर उसके मेमोरीज में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ, ये मेमोरी भी इंपॉर्टेंट होती है कुछ काम करने के लिए हमको डे टू डे लाइफ में, बराबर है, लेकिन नॉन जजमेंटल एक ऐसी एक्सरसाइज है, वो पावर ऑफ नाउ है, मतलब आप प्रेजेंट में जीते हो। माइंड कहाँ होता है, या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में जाता है, माइंड प्रेजेंट में नहीं रहता है। मेमोरी कहाँ है, पास्ट में होती है। क्लियर है? और हम ना पास्ट है ना फ्यूचर है, हम कॉन्शियसनेस है। क्लियर हो गया? पूरा वर्ल्ड कहाँ है, पूरी दुनिया कहाँ है, पूरा मेमोरीज कहाँ है, हमारे माइंड में। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो माइंड से डिस्कनेक्ट होते हो। क्लियर है? मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों माइंड में होता है, प्रेजेंट में माइंड नहीं होता है। माइंड नेवर सस्टेन इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में कोई टाइम भी नहीं होता है। जब हम प्रेजेंट में आते तो हम इटर्निटी में आ जाते हैं। ये क्लॉक वाला टाइमिंग अलग होता है, साइकोलॉजिकल टाइमिंग अलग होता है ना। लेकिन जब प्रेजेंट में होते हैं तो कोई टाइम नहीं होता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो हमारा जो माइंड होता है या तो पास्ट में जाता है या तो फ्यूचर में जाता है, ये प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहता है।
ठीक है, ये रहना ही नहीं चाहता है। अब बार बार देखो, डिप्रेशन आता है ये पास्ट से आता है, और एंजाइटी आती है ये फ्यूचर से आती है। और जब आप प्रेजेंट में जीने लगते हो, ये दोनों से भी मुक्ति पा लेते हो। क्लियर है? यस, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो डॉक्टर मुकुंदराज। तो नॉन जजमेंटल हमको इसीलिए बनना है क्योंकि जब भी हम जजमेंट करने जाएंगे तो हम पास से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि बिना पास के हम जजमेंट नहीं कर पाते। कर पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप मेमोरी का सहारा नहीं लेते हो, जजमेंट कैसे करोगे? और जहां मेमोरी का सहारा लेने जाते हो तो पास्ट में चले जाते हो। क्लियर है? जब भी हम जजमेंटल होते हैं तो बिना पास्ट का सहारा लिए, बिना मेमोरीज का सहारा लिए हम जजमेंटल नहीं बन सकते हो। जब हम नॉन जजमेंटल पे आ रहे तो इसका मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे। जब हम सांसों को देख रहे मतलब हम साक्षी भाव हो रहा है, हम भी प्रेजेंट में आ रहे। इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांग होती है इस तरह की। इसलिए बुद्ध ने ब्रेथ को पकड़ा था। जितने भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लोग हैं ब्रेथ को पकड़ते हैं। क्यों? ये ब्रेथ एक नेचुरल है और ये प्रेजेंट में है। ये आपको एंकर भी करेगा और साक्षी भाव भी दे देगा। दोनों भी काम करता है। जब ब्रेथ रेगुलेशन के प्रैक्टिस होते हैं, जो प्राणायाम बोलते हैं हम उसको, वो एंकरिंग का काम करता है। लेकिन जो मैं नेचुरल ब्रेथ को देखने के लिए बोलता हूं, वो साक्षी भाव डेवलपमेंट का काम है। दोनों में अंतर है। दोनों का भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। ब्रेथ रेगुलेशन के भी इंपॉर्टेंस है और नेचुरल ब्रेथ देखने का भी इंपॉर्टेंस है। समय पे लेना है इसका आपको बेनिफिट। तो जहां हम साक्षी भाव की बात कर रहे हैं वो नॉन जजमेंटल का होना चाहिए वहां पे। इसके लिए हम बहुत एक्सरसाइज करने वाले हैं इन फ्यूचर में, ताकि आपको वो नॉन जजमेंटल की प्रैक्टिसेस भी हो जाए। जब तक आदमी नॉन जजमेंटल नहीं होता है, ये पंछी उड़ेगा नहीं। ठीक है? जैसे देखना, जैसे वैसे देखना और नॉन जजमेंटल ट्रैंक्विलिटी, ये दोनों विंग्स है, तभी पंछी उड़ पाता है। आई एम गिविंग यू साइंटिफिक टेक्निक्स हियर। ये कोई मैं रिलीजियस या कल्चरल चीजें नहीं बता रहा हूँ, साइंटिफिक चीजें बता रहा हूँ जो हमारे सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए मैं ब्रेथ को देखना, रेगुलेट करना, ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये साइंटिफिक है। ये कोई मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो बहुत दूर की चीज होती है। मेडिटेशन इतना आसान नहीं होता है। आप अगर प्रत्याहारा पे भी पहुंचते हो इस लाइफ टाइम में, मैं लाइफ टाइम की बात करता हूँ, लाइफ टाइम में अगर वो प्रत्याहारा की स्टेज पे भी जाते हो, क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे पहुंचते हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस लाइफ टाइम का। एक्चुअली हमारा लाइफ का गोल ही यही होता है कि हमें उस स्टेज तक जाना है। उसको क्रिटिकल सर्टन स्टेज बोलते हैं। जैन योगा में उसको क्रिटिकल सर्टन स्टेज बोला है। मतलब हमारे माइंड के 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जो सेक्शन 1 है उसको श्री कृष्ण ने चित्त भी कहा था भगवद गीता में। चित्त में 4 सेंटर होते, इंटेलेक्चुअल है, इमोटिविटी है, सेंसिटिविटी है और आपका मोटर है। तो ये 4 सेंटर है, ये चित्त का पार्ट है। हमने बहुत बार सुना होगा वो चित्त, मनस, अहंकार, बुद्धि, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो ये सेक्शन 1 का पार्ट है। सेक्शन 2 जो होता है उसमें ए और बी होता है। सेक्शन ए में आपको अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। सेक्शन ए और 2B, इनके बीच में बहुत बड़ी गल्फ होती है। और जैसे सेक्शन 2B स्टार्ट होता है, वहां से इंट्यूटिव पार्ट चालू होता है। इंट्यूटिव पावर्स आने लगती है आदमी को। सेक्शन 3 बहुत ही एडवांस है।
सेक्शन 4 तो बहुत ही एडवांस है। क्लियर है? तो वो जो रिवर है, वो जो नो मैन्स लैंड है, बस उसको क्रॉस करना है। एक बार उस नो मैन्स लैंड को क्रॉस कर दिया तो स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता है। सारा स्ट्रगल चित्त में होता है, सेक्शन 1 में होता है। जितना भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये चित्त का पार्ट है, पूरा स्ट्रगलिंग पार्ट है, सेक्शन 1 का पार्ट ही हो। सेक्शन 2 ए में जाओगे, लेकिन बी सेक्शन ए और बी के बीच बहुत बड़ी गल्फ है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। वो नो मैन्स लैंड है। जैसे उस किनारे पे आप पहुंच गए, आपका काम हो गया। तो वहां से आपका धारणा चालू हो जाता है, मेडिटेशन। उसके बाद की चीजें वो ऑटो प्रोसेस है, आप ऑटो पायलट पे चले जाते हो। तो माइक्रो बॉडी के मास्टर्स आके हेल्प करने लगेंगे आपको आगे जाने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट काम है कि इस जो चित्त का खेल है, पूरा डिस्टर्ब रहते हैं हम। इंटेलेक्ट इज हाईजैक्ड बाय इमोशंस ऑलवेज मोस्टली डिसीजंस आर हैपनिंग विथ सेंसरी लेवल ओनली। हमारा पहला काम है इंटेलेक्ट को डेवलप करना और इंटेलेक्चुअली डिसीजन लेना। अभी बहुत बार क्या होता है, हम इमोशन से काम करते हैं, सेंसरी लेवल पे काम हो रहा है, तो हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना है। इसीलिए कृष्ण जब बोलते हैं सात्विक आहार ले लो, क्यों बोलते हैं? इस डेवलपमेंट के लिए ही बोला है उन्होंने। जब तक आप सात्विक आहार नहीं लोगे, ये चित्त से आगे उठ नहीं पाओगे। तमस को दूर करना है, रजस को कम करना है, सात्विक को बढ़ाना है। सात्विक का मतलब होता है इंटेलेक्ट, रजस का मतलब है इमोटिविटी, और तमस का मतलब होता है सेंसरी। मतलब जो आदमी सेंसरी लेवल पे ज्यादा इंजॉयमेंट करना चाहता है, वो आगे नहीं उठ पाता है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस है। जब मैं कोई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का टॉपिक कभी भी कई प्रोग्राम में कवर करूंगा, उस समय ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आगे बढ़ा जाता है यहाँ से। तो पहला आपका यही काम है कि चित्त से ऊपर उठना है, सेक्शन 1 से आगे जाना है, उस नो मैन्स लैंड को क्रॉस करना है। और ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है इस लाइफ टाइम का। यही मेन मकसद है इस लाइफ का पर्पस का, कि उस नो मैन्स लैंड को क्रॉस करना है। जब भी उस रिवर को क्रॉस कर दिया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत आसान हो जाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर बहुत ही आसान, एफर्टलेस हो जाता है। पूरा स्ट्रगल ये चित्त में होता है, सेक्शन 1 में होता है। जितने भी मिजरी आ रही है, ये इसी में आदमी को सफर हो रहा है। क्लियर है? तो माइंड जो होता है, या तो पास्ट में होगा या तो फ्यूचर में होगा, ये प्रेजेंट में नहीं आता है। इसलिए हमको नॉन जजमेंटल बनना है। डॉक्टर मुकुंद राज क्लियर है? क्लियर है। हाँ। तो इसी के लिए हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये थियोरेटिकली बताने से काम नहीं चलता है ना। नॉलेज तो तब है जब हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे आता है। नहीं तो किताबें में तो बहुत पढ़ा है, टीचर पढ़ाता है, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हम किताब से पढ़ेंगे, कोई टीचर पढ़ाता है, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज तब है जब आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे आ रहा है। इसीलिए मैं एक्सरसाइजेज ज्यादा सिखाता हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। थियोरेटिकल नॉलेज वेस्ट है, उसमें कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल पे आना चाहिए आपको। सत्य के बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको किताबों में, हर रिलीजियस किताबों में मिलेगा, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं उसका। हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस को ट्रूथ जो है, हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे आना चाहिए, तभी वो ट्रूथ है। किताबें पढ़ के कुछ फायदा नहीं उसको, है ना। हाँ, जिसने लिखा होगा उसके लिए वो ट्रूथ होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं हो। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए मैं पूरी ये चीजें सिखा रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिकली करनी है इन चीजों को, ताकि आपका इनर जर्नी चालू होता है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ। तो अब इन टेक्निक को आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। चुन चुन के, अगर कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, तो चुन चुन के उस टेक्निक को ले लो और अपने प्रोग्राम में यूज करो।
तो कौन से टेक्निक कौन से प्रोग्राम के लिए यूज होंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, जो ट्रेनर और कोच बनना चाहता है उनको। विनीता क्लियर है? हाँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन से करना है आपको, बाकी प्रोग्राम के लिए कौन से कर सकते हो, उस टेक्निक को यूज करो आप। लेकिन ये जो पूरा जर्नी है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है पूरा। जब तक आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, सामने वाले को नहीं सिखा सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जब हम थरो होते हैं खुद, तभी हम सामने वाले को टीच कर सकते हैं। बराबर है? मैं इसके लिए बहुत सालों से काम किया है खुद के ऊपर, बहुत अलग अलग तरीके प्रैक्टिसेस की, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस लिए, और इसीलिए मैं जो ज्यादा तौर से जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और थोड़ा बहुत इधर उधर से जब बोलता हूँ तो उसका संदर्भ भी मैं रेफरेंस भी देता हूँ, इधर उधर जो लिया है उसके, नहीं तो ज्यादा तौर से मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ ये चीजें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है ये पूरा कोर्स। यस। तो कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो आज के लिए ठीक है। विनीता कुछ क्वेश्चन है? हम्म। बस आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना फायदा हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन नहीं है इसका मतलब आप डिफोकस हो रही है ना, फोकस इज इम्पोर्टेंट हियर। डॉक्टर मुकुंदराज इज इन्वॉल्विंग वेरी मच, कंसंट्रेशन बहुत है, इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है ना। उस तरह का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो आदमी प्रोग्रेस करता है जल्दी। तो ये पूरा एक्सपीरियंस का खेल है, और ये खुद को ही काम करना ही है, दूसरा नहीं करा सकता। मैं बस गाइड कर सकता हूँ यहाँ पे आपको, लेकिन करना आपको ही ये सारी चीजें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का खेल है पूरा। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ चीजें यहाँ पे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, और उतना जल्दी आप मिजरी से बाहर निकलोगे। whatever you are suffering in the mind, different types of emotions or feelings are there that is not good for your health, you will come out from that easily, अगर ये इन चीजों का आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो। क्लियर है? तो आज के लिए ठीक है इतना, कल फिर मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज से। आज वो बेल मेडिटेशन के लिए 15 मिनट वेस्ट हो गया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं उसको, 2 मिनट का ही एक्सरसाइज है, लेकिन वो डिवाइस पे ओपन नहीं हो रहा था। तो उसको आप लिंक पे देख लेना, कोर्स में मैं रखूंगा वहां पे, तो कोर्स में आप उसको देख सकते हो अच्छे से, बेल मेडिटेशन को। तो कल मिलेंगे हम, अनदर जो नए नए एक्सरसाइजेस होंगे उसकी पूरी प्रैक्टिस करूंगा। लिखना नहीं है आपको कुछ यहाँ पे, ये पूरे रिकॉर्डेड कोर्स में अवेलेबल कर दूंगा। जो अपना मैंने कोर्स का जो एक्सेस दिया है वहां पे आपको मिल रहा है। डॉक्टर मुकुंद राव जी आपने देखा है ना, मिला है ना आपको? विनीता आपको मिला है, देखा है? हाँ। तो उस आज का भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा जो पार्ट है जो उसको एडिट करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कुछ जो है ना। बेल मेडिटेशन चल नहीं रहा था 10-15 मिनट को, मैं कोशिश करूंगा उसको कट कर दूंगा और नया डाल दूंगा वहां पे जो है वो। नहीं तो जनरली मैं रॉ फॉर्म में ही रखता हूँ, एडिट नहीं करना चाहता, लेकिन ये टाइम का वेस्टेज नहीं होगा आपको, इसीलिए उस पार्ट को निकाल दूंगा मैं, ताकि आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में ये ध्यान रखो, लिखो मत कुछ, ये सारा मैं दे रहा हूँ आपको। जो कोच बनने जा रहे हैं उनको मैनुअल भी दे दूंगा मैं इन फ्यूचर में, दूसरों को, आप खुद के लिए भी दूसरों को सिखाने के लिए। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो उतना इन्वॉल्व होना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है? ऑल राइट। तो मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग में 5:30 बजे, है ना? ऑल राइट, हैव अ नाइस डे।